So we benefited with the wait. Anurag sir is here now with us. So as I was saying, we have got two faculties today who will be guiding us to lead a stress-free or minimizing the stress that we face on a day-to-day basis. So Shri Anurag Mehta sir, who will be addressing us on stress management based on learnings from Srimad Bhagavad Gita. He is from Ahmedabad and an avid traveler who has been to more than 175 cities in India. He's a proud Rotarian and calls himself a workplace monk. He's a corporate trainer, counselor, psychologist, author of a book, Life is a Fully Paid Holiday, management consultant with over 23 years of experience, and a visiting faculty with ICAI and LJ School of Law. He has worked with various FMCG, banking sector, hospitality, manufacturing, and education sector with over 10 years in training. He conducts trainings and workshops for students, teenagers, parents, and teachers. He has a unique way of blending ancient spiritual wisdom and psychology with business common sense, focusing on individual development and productivity. I could keep on with the introduction, but let us stop here and let's try to learn the most from him today. Welcome, sir, onto the platform. Before we hand over, can we just see Nirav ji to present our faculty with a memento, please? First of all, let me tell you, I'm not the person who gets late, but it was a confusion in time. I don't know, I thought it will be 4:30, तो मैं तो अपनी तरफ से आधा घंटा पहले आने वाला था. But I realized I'm late. So it's a mistake anyways, and I'm really sorry, and actually I'm very thankful that you've waited for me for so long. Of course, the session I attended was great, meditation was fantastic, but I'm feeling a little guilty. I hope I'll be able to justify that with what we have to talk. Right? So once again, I'm sorry for that because I'm not usually late. Not usually, I'm never late. So that's it. I'm sorry. Okay. So let me just, let them just set it up, please. Just a little bit. ये भी लगा देना. So in the meantime, let me just talk to you like this. Am I audible in the end? So we're talking Bhagavad Gita. And one of my missions in my life is to take Bhagavad Gita ahead. I'm doing my PhD on the topic impact of meditation on emotional intelligence, and I hope it will be over by the end of this year. I'm also a psychologist. So being a psychologist and a spiritual seeker, it kind of is a very good combination that I feel I have. Because once you understand what is Vedanta, what is Upanishad, what are they doing? They're basically understanding the mind. Especially the Vedanta is totally about psychology. If you see Vedanta literature written by some good authors, somebody like Swami Vivekananda in particular, you will literally feel it is psychology. It's a psychology class going on. But there is a difference obviously in the way psychology, modern psychology is, and the way, let's say, Bhagavad Gita is working. Yeah, thank you. So, the difference is that Vedanta is talking about the mind and psychology is talking about the brain. And that makes that whole shift in understanding. What they talk in psychology is brain, but what Vedanta says is that when somebody is dead, the brain is still there. So brain is not the permanent thing. Kain Upanishad is saying, they are asking questions, they are saying, what is this eye? Isn't it inside a dead body? But you open the eye, you will not be able to see. So what is it that is seeing right now? What is it that is speaking right now? If there is a dead body, if I die, for example, just now, everything, I have hands, I have legs, I have teeth, ears, eyes, nose, etc., everything, right? But none of them is working. My favorite food is there in front of me, I can smell it. I can't taste it, I can chew it. I can't see you guys. The same eyes are there. So what, and the same the brain. So Vedanta is saying the brain is there, but that is not functioning.
It is something else which is functioning. Chetana. So it is talking of consciousness, it is talking of Chetana, and it is talking of something which is like, which is animating this body, which is like activating this body. जिसने switch on कर दिया है और अब चल रहा है सब. Body अपने आप recycle हो रही है. Every 6 to 7 years, although this is debatable, 3 to 4 to 6 to 7 people are saying scientists, years, the body is recycling. So this is not the body I had pre-COVID, let's say, right? Or let's say at least I can be very safe in saying in 2015, the body I had, I'm not sitting in this body right now, right? The body changes. And there are so many things where you can see you're not this body. You're something else, right? So in that context, we understand from Vedanta that I'm not this body, I'm something else. Who am I? We'll talk about it. How do we relieve stress? We'll talk about it. But the question that comes is, I have got problems, financial problems, business problems, clients के साथ issue है, there are conflicts, all of those things are there. And you are saying, Nanan Chintante Shastrani, Atma ko Shastra nahi kaat sakta. Was, how is this going to help me? This is not going to help me. मेरा EMI क्लियर नहीं हो रहा है, मेरे पास पैसे नहीं है और तुम आत्मा की बात करो यार. इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो क्या गीता यूजलेस है? ऑफ कोर्स नॉट. बोले कर्म योग की बात करो, उसमें शायद कुछ होगा, ये तो आत्मा की बात मत करो. बट कर्म योग, ज्ञान योग एंड भक्ति योग ऑल वर्क इन टैंडम. All of them work in a lot of sequence, right? So I'll continue now with the PPT and I'll kind of discuss all of those things that I have talked about just now in a little synchronized way. So this is the Arjun, the modern Arjun. See, we have to improvise. Na? Thousands of years ago, Arjun had a problem. That is not the problem I have. So Gita will not be relevant to me. बोले मेरे को थोड़ी लड़ना है किसी से. एट द मोस्ट आई माइट सी एकता कपूर एंड अनुपमा एनीथिंग थोड़ा सा रिलेटेबल है, ज़्यादा नहीं है, बट दिस इज नॉट हेल्पिंग मी. सो आई हैव टू फाइंड आउट दिस कॉर्पोरेट गाय. एंड दैट्स व्हाई, sir, with all due respect to you, I always think I should wear a kurta in a Bhagavad Gita lecture, and then I say no. I'm talking to my people. I've been in corporates. I've worked in Citibank. I've been a branch manager in Kotak Bank, etc., etc. And I've been training, leadership, strategy, coaching, all of these organizations. I've been doing it. Yeah, इन्हीं लोगों को तो भगवद गीता की बात करनी है ना. And that's why I was feeling so sorry right now. I had such a beautiful opportunity to talk to so many people from the industry, and I've missed it. I've really missed it. It is stupid on my part. I don't know why. In that brochure I saw 4:30. I don't know what sense I was in. I was very comfortable. I'll come by 4. आराम से बैठूंगा जल्दी. But I've missed it. I mean, it's really looking. The whole room is looking a little saddening to me in the way that I've missed really. But continuing. So this is the Arjun. What is this? This is the glass prison which doesn't exist. But this guy thinks it does exist. In the sense that this guy thinks, oh, I'm stuck at my workplace. मैं फंस गया हूँ. कैसे निकलूँ? Especially those people who are doing a job are like, boss, मैं अब क्या करूँ? मैं तो फंस गया. Whatever, my boss, my client, what this. Even those people who are doing business, the same thing. We feel we are stuck in life, while this door is imaginary. This doesn't exist. Gita saying freedom is your essence. Freedom is your essence. You don't need to feel stuck. But I say, boss, I am stuck. So help me out. Miss Gita, help me out. I want an answer. Can you help me? So let's see. So there are some questions. Arjun had some questions. I have some questions. When I say I mean all of us. Some questions. So Gita is asking, why do you work? So can somebody tell me, can we now onwards make it a little interactive? Why do we work? Anyone, if you can tell. Survival. Okay, survival. So is that the only purpose? Self-satisfaction to achieve goals. So if I had 400 crores in my account, will I still work? I'll still work. I can't sit at home. I will still work. For self-satisfaction, I'll work. I'll still set goals, but for my satisfaction, because achieving them
will fulfill me. Achieving them will make me feel good about myself. Right? So that's what it is. Why do I work? Because I want to work. Because I don't want to sit idle. अगर मेरे पास 400 करोड़ होगा मैं स्कूल खोल लूँगा एक, मैं होटल खोल लूँगा एक, मैं कुछ तो करूँगा. Maybe an NGO. At least I'll do something. I can't just sit at home. Right? Why do I work? Because विराट कोहली बॉल लगा के टिक टिक करेगा तो उसको मज़ा नहीं आएगा. उसको किक मिलेगा जब वो पिच पे होगा. और सामने द मोस्ट डिफिकल्ट बॉलर विल बी देयर. उसको तब किक मिलेगा. उसको अगर चॉइस देंगे, दो बॉलर हैं, एक कमज़ोर है एक स्ट्रांग है, कौन है? बोले ये स्ट्रांग वाला भेजो, कमज़ोर वाला नहीं चाहिए. राइट? क्योंकि उसको किक मिलेगा. सो दैट किक, डू आई गेट दैट किक एट माई वर्क प्लेस? डू आई गेट दैट किक व्हेन आई रीच द ऑफिस? व्हेन आई थिंक अबाउट माई वर्क, डू आई गेट दैट किक? Or am I a victim of Monday blues, the so-called Monday blues? What is Monday blues? Monday blues is in New York at 9 a.m. on Monday mornings, maximum people have heart attacks. You can check it on Google, there is a research on that. I'm not making it up. Monday mornings, 9 a.m., New York City, maximum people have heart attacks at that time. This is unfortunate. And the further you go into research, reading that research, you will see it is because they have to go to the workplace. Because they have this culture, work hard, party hard. So of course they party hard. And from Sunday evening like, oh my God, yaar, kal to Monday. So how many of us love long weekends, which is okay, but how many of us don't love workplaces? Is a question that Geeta will want to ask you. Right? Because if that equation is wrong, there has to be stress. Then you have to rather correct it there than doing anything elsewhere. That is what Geeta is saying. Next is, why do you want to win? Now, having said the context, there are a few questions. We can go a little faster. Why do you want to win? Why do you want to win? Why do you want to win? Why would you want to win in any competition? Maybe to stay relevant. Yes, to stay relevant. Again, to feel good about myself that I won. Not for pride. Not for pride. Jeet ke, I don't want to do this. I don't want to win because of this. I want to win because I feel very good. Competition is very, very good for anybody. And I like competition. And I win. And sometimes I lose. But I'll play to win. At least I'll play to win. Right? Next, you have to keep pushing yourself. Is that true or not? Is that true or not? कर्मण्येवा धिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. बोले तुम कर्म करो और कर्म में इतनी शिद्दत डालो कि बाकी रिजल्ट्स के तुम्हें खुद को चिंता ना रहे. That doesn't mean you push yourself, because push is a negative word. Push is a negative word. In essence, push is a negative word. You want to do a lot of hard work, which is good, which you should. But is pushing the right thing? Push is negative. You can't live in this way, in this little girl's way, your whole 40 years of life. Can you do that? Because this girl is pushing herself, if you can make out some sense out of the picture. She is pushing herself. Can you push yourself daily? Do you have to push yourself daily? You know? So there's some kind of perspective changes which are required by Geeta. Why do you have to love my job? Love your job. You should love your job. Why? Why should I love my job? Come on, somebody. Why should I? Yeah? If I love my job, I'll be better at it. Yeah. I'll automatically prove myself. Yeah. Yeah. If I don't love it, I'll eventually be Correct. Yes, please. Yeah. Yes. So, when I love my job, I don't love it because it is obvious to love your job. How can you not love your job? Because my boss tells me, how can you not love your job? Yeah, it is obvious the other way. I have to love what I do. And only then I'll want to upscale. Japanese don't have to come and teach me Kaizen. I have Bhagavad Gita here. I know Kaizen. You don't have to teach me that. With all due respect, of course. Or better, or better, or better. That's a human instinct. Instinctively, I want to do it better, but
If I don't love my job, I'll not be willing to put that extra effort to do it better next time. Last time अच्छा किया, very good. अगली बार और अच्छा करेंगे यार. ये instinctive है, right? So that is what is karma. Why do we need to be good in work? We almost discussed that, right? Then why do I need promotions? बस यार अब हद हो गई सर. Come on यार, कुछ भी आप पूछ रहे हो. Of course we need promotions. Why do we need promotions? Motivation, self-motivation. Yeah, self-motivate, to motivate myself. I need promotions to motivate myself. I need to feel good about myself, like the same thing. Do I want to win? This is like that. I want to win. I want to be promoted. I want to go to the next level. You know, in science, during our childhood, we did this in our class. Difference between living and non-living things. There was a line we used to draw. Idhar kuch, idhar kuch. There was one thing we wrote, living things grow, non-living things don't grow. If the willingness to growth gets killed inside me, I'm sorry, I'm no more deserving to be called living. If I don't want to grow, whatever the reasons, yeah, whatever the मेरा boss ऐसा, company ऐसी, client ऐसे, that's funny, whatever. If I don't want to be better, if I don't want to grow, if I don't want to get promoted, or I want next levels of business, again, whatever be the reasons, I'm not supposed to be called a human being. I want to grow because I want to grow. It's as simple as that. Right? Then, very important. When I joined the company for the first time, or when I started my practice, or whenever, whatever I'm doing, am I having the same passion, Ranveer Singh inside me, as I had on day one? यार रणवीर सिंह को बिठा दिए साइड में, ठीक है, तेरे खबर नहीं पड़े, तू जाओ दे. I know what is happening here. Where am I on that equation? Where do I fall in that equation? Is the Ranveer Singh alive or not? Right? The passion I had in the first day, बार बार हाँ, कुछ करेंगे, बड़ा करेंगे, है ना? Where is that guy? Are you feeling the same thing? Right? Next. ये WhatsApp में से निकालो, हम भेजते हैं एक दूसरे को ना. We love our weekends, don't we? From Thursday we wait for a Saturday, if it's a 5-day week. And then on Sunday, we have a problem. So now, if this is a state of mind, then really the Arjun in me is alive, and he better read the Bhagavad Gita. Not from a religious point of view. But now I need answers here. Stress तो मैंने ही create किया है. And that is the organizational psychologist in me which is saying this. Stress तो मैंने ही create किया है. If this is the mindset, then there is a problem. Sorry. Then there is a problem, and I guess that's how it is. Right? So, therefore, the context of Bhagavad Gita. Again, the same guy. And now we have Maharishi Vedyas. Now I want to talk to you about a couple of things. I think I'll just stand here. So, when you read the Bhagavad Gita, please understand the context. First of all, Krishna is not God in Bhagavad Gita. Arjun ke liye, Krishna was not the God. Yeah? That is why you could ask a lot of questions. What we are told, जो किताब में लिखा है वही लिख के आओगे. तुम किताब से ज़्यादा जानते हो क्या? And then somebody says you Nastik. Yeah? No. Krishna is God elsewhere, everywhere else. Here he is a friend, philosopher, guide. Somebody who knows more than me. And somebody who knows something that I don't know and I want to know. That's it. So I can ask questions. कर्म कर फल की चिंता मत कर. हाँ 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 बाहर जाके चिंता नहीं कैसे नहीं करेंगे यार, गोल सेटिंग तो करनी पड़ेगी ना. Why this double standards? Because we are told not to ask Krishna. Krishna ऐसे कैसे होता है यार? गोल तो सेट करने पड़ेंगे ना. बट भगवान बोलेंगे तो हम पूछ नहीं पाएंगे. And then the Gita thing gets lost. 1. 2. Ved Vyas. I've written this 18.63, 18.66. Now what happened in 18.63? 18th Adhyaya, the last Adhyaya, 78th slok is the last slok. We are almost nearing the end of Bhagavad Gita. And in 18.63, like a good teacher,
कृष्ण टेल्स, चलो भाई मैंने जो बोलना था बोल दिया, अब तेरे को जो समझ में आए तू कर, वेरी गुड, आई एम नॉट फोर्सिंग यू। मैंने भले विराट रूप दिखा दिया, आई एक्चुअली शोन यू आई एम द गॉड, राइट, स्टिल आई एम सेइंग यू डिसाइड, तेरे को जो यथा योग्य लगे वो कर। मीन्स आई व्हाट डू यू वांट, खड़ा होकर लड़ाई कर यार, आई मीन और क्या यथा योग्य, इतना तो समझा दिया तेरे को। ही डजंट गेट अप। बोले भाई सीए का कोर्स चल रहा है क्या 4 साल का, एमबीए कर रहा है क्या, वॉर जोन है, स्टैंड अप। तो 18.64 18.65 कृष्णा इज ट्राइंग टू टेल हिम, तेरे को मैंने गोपनीय से अति गोपनीय चीज बताई है क्योंकि तू मेरा अति प्रिय है। नाउ इज गॉट इनटू अ सेल्समैन मोड, भैया इज्जत का सवाल है, हाँ बोल के लड़ाई कर यार, 18 अध्याय लगा दिए तेरे लिए है, अब उठ के खड़ा होकर लड़ाई कर प्लीज। भाई उठ ही नहीं रहा, भाई बैठा होता है ना वो स्टूडेंट, लास्ट में उनको क्वेश्चन पूछो, ऐसा वाला है, कमाल है यार। इतना अगर ज्ञान दिया है, इतना सारा ज्ञान दिया है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, धर्म, अपना ध्यान योग, विराट रूप, परम गति, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, सब तो बता दिया, जो था सब बता दिया महाराज, अब तो उठो। इज नॉट गेटिंग अप, प्लीज। वेद व्यास इज सो ऑसम, ही इज सो ऑनेस्ट, ही सेइंग बॉस, भगवान के मुंह से गीता सुनने के बाद भी वो खड़ा नहीं हुआ, तुम्हारा क्या होगा। ही इज वेरी ऑनेस्ट एंड आई लव दैट ऑनेस्टी। गीता एक बार पढ़ने से समझ में आ गई तो समाज में तनाव ही नहीं होता। So you'll have to reread it, but more important than that, you have to practice it in your life. You take one slok at a time and practice it. Till that time, there is no sense in reading the Bhagavad Gita. 18.66 he says, अच्छा जो लोग गीता बार बार पढ़ते हैं, शायद आप में से भी कोई जानते होंगे, 18.66 को गीता का मेन श्लोक माना जाता है, इन द सेंस दैट दे से कि गीता खत्म हो जानी चाहिए यहाँ पे, बाद में तो फॉर्मेलिटी है, वो फॉर्मेलिटी इंपॉर्टेंट है, वो अलग बात है, बट बोलते हैं 18.66 पे गीता खत्म हो जानी चाहिए। नाउ व्हाट इज गॉड सेइंग इन 18.66? बोल रहे हैं मैं तेरे लिए सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, तेरे को कोई पाप नहीं लगेगा, भाई तू उठ। भगवान को भी आरबीआई का बॉन्ड देना पड़ रहा है, बॉस मैं तेरे लिए सत्य प्रतिज्ञा कर रहा हूं, प्लीज उठ। तो मेरे मन में क्या आएगा, भैया मेरे को तो किसी ने नहीं कुछ दिया। अर्जुन का वन ऑफ द प्रॉब्लम्स वाज, ये सब करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, गुरु हैं, ये हैं, वो हैं, है ना, मेरे को पाप लगेगा। तो भैया तेरे को पाप नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी है। भगवान मेरे को तो गारंटी नहीं दी यार तुमने, मेरी भी कंफ्यूजन है, मैं क्या करूं। तो अर्जुन के लिए था गीता, बात खत्म। What Vedvyas is saying is this, that in spite of reading the Bhagavad Gita, there will be chances that you would still be in the same zone, mental zone. So reading the Bhagavad Gita won't help until you practice it. And that's why I love this gentleman. क्या ऑनेस्टी के साथ ये चीज़ रखी है सामने। कौन करता है ऐसा? कोई ऑथर ऐसे नहीं करेगा। But he's saying this metaphorically बोला, सीधा नहीं बोला, समझने वाले को समझना चाहिए। He is just trying to say this, right? Then, so therefore this Arjun. So here the Gita, Bhagavad Gita starts with who am I, right? Now the second adhyaya of Bhagavad Gita is considered to be the summary of Bhagavad Gita. If you've read Bhagavad Gita a couple of times, then you can only read the second adhyaya and that's it. You don't need to go further. Because second adhyaya has 3 main elements which are covered further on. First is Gyan Yoga, second is Karma Yoga, third is Bhakti Yoga. How they say it? Tattva Gyan. First is Tattva Gyan. So when they say Gyan Yoga, it doesn't mean you have to be some kind of a Gyani. Gyan Yoga is तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो. That's the तत्व ज्ञान. जो मनुष्य मुझे तत्व से जानता है वो मुझे पा लिया है, ऐसा गीता में बहुत बार लिखा हुआ है. तत्व क्या है? मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं. Now let's understand that. सपोज मैं यहाँ से गया और जिस तरह से मैंने गाड़ी चलाई अभी, सपोज मैं ऊपर चला गया होता, सीरियसली, बिकॉज आई वाज ऑब्वियसली आई लेट, तो मैं सपोज ऊपर चला गया तो बात एक हुई, इसको अलग रखते हैं. द अदर पार्ट इज
सपोज मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, राइट, उसके बाद मैं ठीक हो गया और मैं निकल आया बाहर। सपोज उसमें पुलिस केस भी चला, पुलिस में भी जितना जो समय मैंने बिताया जेल में, और मैं वापस आ गया, एंड नाउ आई एम लिविंग अ नॉर्मल लाइफ। वॉट एवर आई एम डूइंग इज अ मेमोरी, इट्स अ मेमोरी, आई am still there. Please understand this. This is very important to understand the तत्व ज्ञान. I am still there. जब बोल रहे हैं 2.36 में 2.30 में कि आत्मा अवध्य है, अवध्य क्या मतलब है कि आत्मा को जला नहीं सकते, नानंद चिंतन तीर्थ एक्सेट्रा 2.23, आत्मा जल नहीं सकती, आत्मा को जला नहीं सकते, आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, आदमी को आत्मा को पानी गला नहीं सकता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 2.30, 2.31, लिटिल बिट 2.32 इज सेइंग दिस। इसका मतलब क्या है और मेरे लिए क्या रेलिवेंस है? इसका रेलिवेंस ये है दैट फ्रीडम, दैट स्वाधीनता, दैट भगवद गीता इज टॉकिंग अबाउट इन, सॉरी मैं थोड़ा 2.64, स्वाधीन, फ्रीडम, it is talking of that freedom. What it is saying was, you are not Anurag, you are not this body. जैसे हमने बात किया, if this body is dead, all the organs are there but they are not working, so certainly you are not this body. Whatever happens to you in your life, you are still there. Whatever the most beautiful things, whatever the worst things, whatever they happen to you, end of the day you are still existing, you are still there. Nobody can kill you. You as in not this body, you, जिसका नाम अनुराग है. Nobody can kill you. Now, this is a little deep. I really hope I am able to maybe give some idea. Sorry, how is this? Sorry. I am really wanting कि थोड़ा भी इसका hint कहीं मैं generate कर पाऊँ in your hearts, right? I am not this body. Whatever happens to me, but I am still there as the constant factor, the observer. मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने गुस्से में कुछ कर दिया, उसके बाद मेरे को लगा मैं गलत हूँ. End of the day, whatever happened, now it's a recording, like in this camera. It's a recording. I am still there. ये मैं तो हूँ अभी भी, कमाल है यार. I am still there. कुछ भी हो जाए, मेरा शरीर थोड़ा जल जाए, कुछ हो जाए, मैं तो अभी भी हूँ. Till the time I am alive, I am there. Of course, when I am not alive, I am not alive. वो तो फिर समय के हिसाब से सब है. जो समय आएगा तभी होगा, उससे पहले तो मैं मर नहीं सकता, राइट? इतना तो हम समझते हैं, आई गेस, राइट? तो फिर जब तक मैं जिंदा हूँ, मुझे डरना नहीं है, बिकॉज मुझे कुछ नहीं होगा. मैं ऊपर से नीचे गिर गया, मेरे को मेमोरी लॉस हो गया. पहाड़ में मैं ट्रैकिंग करने गया अकेला, नोबडी नोज मैं कहाँ पे हूँ. आई फेल डाउन, समबडी वेक्स मी अप, कौन हो भैया? पता नहीं भाई मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ मैं. टिपिकल, हाँ, पता नहीं भाई, काम करो, चलो हमारे गांव में रहो. सो आई माइट बी अ करोड़पति इन द सिटी. नाउ आई वेंट फॉर ट्रैकिंग, नाउ आई एम नोबडी, लाइक नोबडी इन द सेंस ऑफ व्हाट वी अंडरस्टैंड. नाउ आई एम सम मछुआरा, मे बी. I don't remember. My name is changed. Probably my religion is changed. Who knows? मैं तो भी मैं हूं ना. I may not remember Anurag Mehta and the story I had in the past, but I am still there. Can you understand the essence here? This is what तत्व ज्ञान is. कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो. आत्मा बड़ा abstract हो जाता है, इसलिए मैं बार बार वो वर्ड यूज नहीं करना चाहता, because we really get into other things when you talk of आत्मा. But on the same hand, I am not this body. तत्व ज्ञान. This is the first part of भगवद गीता, ज्ञान योग. इसमें आपको पंडित होने की जरूरत नहीं है. गीता हैज अ लॉट ऑफ प्लेसेस वेयर इट सेज यू डोंट नीड टू बी सम ज्ञानी टू अंडरस्टैंड तत्व ज्ञान. तत्व ज्ञान इज बेसिक. यू आर नॉट दिस बॉडी, राइट? व्हेन यू अंडरस्टैंड यू आर नॉट दिस बॉडी, यू फील वेरी सेफ, बिकॉज वॉट एवर माइट हैपन टू मी, आई एम स्टिल देयर एंड आई कैन चैलेंज. मुझे मार के दिखा, तू जो करना कर इस शरीर के साथ, मुझे मार के दिखा. I challenge, तू मुझे मार के दिखा. You feel so good and safe about yourself. You feel so nice about yourself. You feel so safe. Safe. Right? You feel so safe and nice. Okay? That is what is Tattva Gyan. Second is Karma Yoga.
तत्व ज्ञान हो गया, अभी कर्मयोग। कर्मयोग क्या है? कर्म कर, फल की चिंता मत कर। नाउ व्हाट कृष्ण इज टेलिंग हिम इन 2.32, boss, you are lucky that you have got that work which you are skilled at. And 2.38, he is saying, you cannot not work even if you don't want the riches, because वो क्या बोला, मैं संन्यास में जाऊंगा, मेरे को भीख मांगूंगा, चलेगा वगैरह वगैरह। बोले तेरे को वो भी नहीं चाहिए तो भी तेरे को तेरा काम तो करना पड़ेगा। सचिन cannot suddenly say I am not playing. Well, you don't have a choice, you are a team. Similarly here, you have a work, you have to finish it. You have got a responsibility. You have to understand, if you go, first of all, जंगल भी जाएगा तो भी तेरा दिमाग तो चलता रहेगा. You will not find peace over there. That being said, तुम जंगल जाएगा या जो भी करेगा, end of the day, you have a responsibility, because you know if you are gone, the Pandavas will lose a war, and that loss is going to be really, really bad. Right? So you have to do this. You have to win. You have to win. You don't have a choice. Therefore, you have to fight. Win or nothing is, no, loss is not in your hand, but you have to do your job. You don't have a choice. Now, COVID taught me something. I am a corporate trainer. I do trainings in corporates in HDFC, Grasim, L&T, etc. A lot of places. I do corporate trainings. अब हमारे ऐसे ट्रेनर के लिए क्या है, लोगों को इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल एट AMA I did 2 trainings, तो सब लोग साथ में होंगे तभी ट्रेनिंग कर पाएंगे. ऑनलाइन में हमारी ट्रेनिंग नहीं चलती. नाउ सब लोग साथ में बैठे हैं, कोविड में तो पॉसिबल ही नहीं है. नाउ आई वांट टू ट्रेन बट आई डोंट हैव वर्क. फॉर 2 years पीपल लाइक मी डिडंट हैव एनी वर्क. नाउ व्हाट डू आई डू? What I do? I do nothing. So I realized one thing. What I found resonance in Bhagavad Gita in 2.32. बस अगर काम करने की काबिलियत है, काम करने की इच्छा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, 2 एंगल सेट हो गए. थर्ड, काम है, then you are the luckiest person in the world. Then you have no reason to complain. If you have an ability to do something, and if you have the ichha to do that thing, and if you have the work, boss, please, no complaints in life after that. You don't have the right to complain. This 2.23 is saying, अपने आप से मिला हुआ वो काम जो तुझे बाई चांस मिल गया है, लेकिन तेरा वाला काम है. क्षत्रिय है, युद्ध कर, तेरा वाला काम है. You are so lucky. Consider yourself to be lucky. So whatever work we do in our life, if that is something which I like to do, then I should not have a reason to say no to it for whatever reasons. And आगे तामसिक में कर्म में क्या बोल रहे हैं भगवान? तामसिक कर्म में ऐसा बोल रहे हैं, तामसिक एंड राजसिक कर्म. राजसिक कर्म, राजसिक कर्म क्या है? आपने कोई काम पैसे के लिए किया, ठीक है, राजसिक है, ठीक है, पैसे के लिए किया, बट बोल रहे उद्देश्य क्या है? पैसा. पर तामसिक क्या है? आपने कोई काम को रिजेक्ट किया क्योंकि आपको आपके जितना पैसा नहीं मिल रहा. देन दैट इज तामसिक. एज पर भगवद गीता, दैट इज तामसिक. कि आपके पास एक एबिलिटी है एक पर्टिकुलर काम कर पाने की, आप उस काम से किसी की हेल्प कर सकते हो, पर आपने इसलिए नहीं किया क्योंकि उतना पैसा नहीं मिल रहा जितना आपको लगता है मिलना चाहिए, उसके लिए आपने रिजेक्ट कर दिया वो काम, तो वो तामसिक है. और आपने वो काम इसलिए किया क्योंकि उसमें पैसा मिल रहा है, तो वो राजसिक है. और आपने निष्काम कर्म आपने इसलिए किया क्योंकि वो काम करने में इतना मज़ा आ रहा है, कामयाबी तो झक मार के आएगी. रणछोड़ दास बाबर ने बोला वो तो आने वाली है, उसका टेंशन नहीं, वो सात्विक है. दिस इज भगवद गीता विच इज सेइंग, जितना भी हम बिलीव कर पाए दैट्स ओके. आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत जितना पैसा मुझे चाहिए उतना चाहिए. एज अ ट्रेनर आई नो बियॉन्ड अ लेवल आई विल नॉट गो. Once in a while I do trainings for free also, otherwise also. But many times I have to say no. I do. अब वो तामसिक है नहीं है मुझे नहीं पता. See, practically speaking, कई बार नहीं हो पाता ऐसा, तामसिक वाला thought process नहीं dominate करता है. भैया इतने कम में मैं नहीं करूँगा, sorry. There is a rate that I have in the market, because then I think people will start misusing me. Although that doesn't happen, I also know that अगर आप अच्छे हैं, eventually to retain you, they will have to give you good money. End of the day it works out fine, but in some cases I do say no very few times. आज सुबह ही सस्ते वाला, बहुत सस्ते वाला लेक्चर 3, अब मैं यहीं था यार, अब मुझे लग रहा है मैं यहाँ से इधर ही आता, मुझे लगा भी ये पेपर नहीं था मेरे पास, बस
नहीं तो मैं सोचा था कि मैं अभी 12:30 फ्री हुआ यहीं पीछे, और आई थॉट यहीं से निकला मैं, आई थॉट यार रुक जाता हूँ मैं यहाँ पे। ये तो मेरा बेटा मेरे को फोटो निकाल के भेज देता है यार, आई फील सो स्टूपिड समटाइम्स, ये क्या किया, रुक जाना चाहिए। नाउ यू डोंट नो, हाइंडसाइड यू कैन थिंक ऑल द थिंग्स, बट या सो आई वाज हियर ओनली। आई डिड अ वेरी सस्ता ट्रेनिंग 3 या 4 आवर्स, बट वो क्या था, बच्चे हैं, टीनेजर्स, उनके लिए तो मैं फ्री में भी कर दूंगा। सो द लॉजिक वॉज दिस, टू से येस टू देम। बच्चे हैं, बच्चों को गाइड करना इज समथिंग दैट आई हैव, दैट इनर थिंग इन मी। टीनेज विजडम इज अ सिस्टम आई हैव, जिसका पंच लाइन है इंस्पायरिंग यंगस्टर्स टू डिस्कवर देमसेल्व्स, एंड आई ऑनेस्टली ट्राई टू डू दैट, एंड आई थिंक ठीक है यार अभी चलेगा। सो दैट वॉज स्टिल अ जस्टिफिकेशन, चलो मैं अच्छा ही काम कर रहा हूँ, कम में कर रहा हूँ, कई बार मना भी कर देता हूँ। आई एम नॉट द सेंटली गाय एंड ऑफ द डे, so I say no. So that is the logic behind this. Okay. Now what Swami Vivekananda says, he is saying मेरी सारी teachings को summarize करके एक point पे डालना हो तो वो ये है, everything that is excellent in life will come if the divine potential in me and you is realized and used to the fullest. मेरे अंदर का डिवाइन पोटेंशियल क्या है, तत्व ज्ञान, कर्म योग एंड भक्ति योग पे भी आएंगे। इसको अगर मैं समझ लेता हूं और इसको मैं जीना शुरू कर देता हूं, एवरीथिंग दैट इज एक्सीलेंट विल कम। प्लीज, एवरीथिंग दैट इज एक्सीलेंट विल कम if the divine potential in me is realized and used to the fullest. This is what Swami Vivekananda is saying. And Swami Vivekananda was a great propagator of Vedanta and Bhagavad Gita. Right? So this will go ahead now. Now we'll come to the main point. And although I had a lot of PPT slides, but I'll try to now, after this, I'll try to more or less finish. So we'll talk about self-actualization, we'll talk about Kaizen. Okay. ये self-actualization है, most of you would have known this. Self-actualization, Abraham Maslow. अब्राहम मैस्लो क्या बोल रहा है, पहले दो स्टेजेस में 1956 में उसकी जो मेन थ्योरी आई थी, जिसको आज भी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, उसने क्या बोला कि रोटी कपड़ा मकान है, ये हायरार्की ऑफ नीड्स है। हायरार्की ऑफ नीड्स कि मेरी जो नीड्स हैं वो इस लेवल पे ग्रो करती हैं, इस तरह से ग्रो करती हैं। तो रोटी कपड़ा मकान है, उसके बाद मुझे फैमिली चाहिए, दोस्त चाहिए। फिर जब तक वो नहीं है, कोई फैमिली दोस्त नहीं चाहिए। मुझे पहले भैया मेरे को पेट भरना है, घर पे छत होनी चाहिए, कपड़ा होना चाहिए, इसका एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होना चाहिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँ। राइट? तो आगे बढ़े तो फ्रेंड्स चाहिए, उसके बाद एक स्टेटस चाहिए, विजिटिंग कार्ड थोड़ा हैवी होना चाहिए। सेल्फ एस्टीम बोले या स्टेटस बोले, आई वांट अ हैवी विजिटिंग कार्ड। राइट? स्टेटस, बड़े बड़े सोसाइटी में चेयरमैन बन जाओ, सेक्रेटरी बन जाओ, लायंस क्लब या रोटरी क्लब में कुछ बन जाओ, और कहीं यहाँ पे ICI में कुछ बन जाओ। यू नो, नाउ आई वांट सम काइंड ऑफ अ स्टेटस। एंड इन द एंड ही सेज, जब सब अचीव कर लें तब मैं सेल्फ एक्चुअलाइज करूँगा। सेल्फ एक्चुअलाइज इज एक्चुअलाइजिंग योर सेल्फ, योर बेस्ट पॉसिबल पोटेंशियल दैट यू हैव, उसको अचीव करने का कोशिश। जो पहले क्यों नहीं किया? बिकॉज सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी थी, तो मैं अपना 100% नहीं दे पाया। बोले ये सब ठीक है, पहले सेट कर लो, अपना पैशन बाद में फॉलो करेंगे, लेट मी फॉलो दैट लेटर, लेट्स फिनिश दिस। अब जब आ गया बेसिक लेवल, देन आई टेंड टू सेल्फ एक्चुअलाइज। दैट्स हाउ आई लुक एट इट। राइट? इसको भगवद गीता में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को बोला विक्रम। विक्रम थर्ड अध्याय में क्या आता है? विक्रम आता है विशेष कर्म। विशेष कर्म इज वो कर्म जिसको करके आत्मा को शुद्धि मिले। ये गीता के लैंग्वेज, आत्मा को शुद्धि मिले वो काम। यानी मेरे को शाम को लगे यार मजा आ गया, आज तो मजा आ गया, मेरे को इतना मजा आया, आई फेल्ट सो कंप्लीट, सो फुलफिल्ड आफ्टर डूइंग दिस वर्क, आई फेल्ट सो नाइस, मजा आ गया यार। राइट? दिस इज विक्रम। नेक्स्ट लेवल पर मैस्लो हिमसेल्फ सेड, भैया हायरार्की ऐसे नहीं चलती है। 1976, just before his death, there was a theory he came up with, जिसको APA ने एक्सेप्ट तो किया लेकिन उसको पब्लिश नहीं किया, बिकॉज इट वॉज सपोज टू बी ए कॉम्प्लेक्स थ्योरी। इसने एक और लेवल ऐड किया, सेल्फ ट्रांसेंडेंस। उसने बोला, और मैं उसको पैराफ्रेज करता हूँ, जैकमा है, बिल क्लिंटन है, धीरूभाई अंबानी है, अपने निर्मा वाले भाई साहब हैं, देन ऑल द पीपल, यू नो, एक्सेट्रा, सो मेनी पीपल, they were self-actualized from day one. They had this in them कि मेरे को अपना 100% देना है। ना रोटी कपड़ा मकान का आता पता है, ना रिलेशन है, ना स्टेटस है, मेरे को अपना 100% देना है। तो बोल रहा है काम करते करते, ये ज़रूरी नहीं आप ऐसे ही जाओगे। बोले एक और लेवल है
सेल्फ ट्रांसेंडेंस। काम करते करते आप अपने आप को भूल गए, आप खुद को भूल गए, आपको समय का बोध नहीं रहा, आपको अपना बोध नहीं रहा। रात को आज लंच नहीं कर पाए, काम में इतने, हालांकि वैसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा एक्सट्रीम है, समझाने के लिए बोल रहा हूँ खाली, पर लंच नहीं कर पाए, कुछ और फोन नहीं किया वापस, वाइफ ने कुछ बोला था काम करके आना, वो भूल गए। आई वॉज सो engrossed इन वर्क। प्लीज अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट हियर, राइट? व्हाट गीता इज सेइंग इज, दिस इज अकर्म, विकर्म, अकर्म। अकर्म इज नॉट नो कर्म, अकर्म इज जहां पे कर्ता अपना बोध भूल गया, जहां कर्म कर्म नहीं रहा, जहां कर्म कर्म नहीं रहा। कर्म करते करते इतना मजा आया कि आसपास कोई चीज की कोई सुध-बुध नहीं रही। आई जस्ट डिड वर्क बिकॉज आई वांटेड टू डू इट एंड दैट्स इट। अब जब करता ही नहीं रहा तो फल की इच्छा करने वाला कौन रहा? और दिस इज नॉट अ माइंड गेम, ये तो बेवकूफ बना दिया भैया तुमने, ऐसा नहीं है। कामयाबी तो झक मार के आएगी जब हम काबिलियत के पीछे भागेंगे, वो तो ठीक है, वो तो आनी है, बट कैन आई फोकस ऑन द वर्क। मैंने अपने होता है ना 40 पे रिटायर ऑल दैट, है ना, 40 पे रिटायर हो गए, गांव में कोई खेती में ज़मीन ले लिया और वहाँ पे अमेजोन से बीज मंगाए और डाल दिए, बढ़िया एकदम अमेजोन से सब मंगाया और सब करके डाल दिया। 3 दिन हो गए, बोले यार उगा ही नहीं कुछ। तो आसपास और किसान थे, बोले भाई साहब टाइम लगता है इसमें, ऐसा नहीं है टाइम, हम टाइम के लिए वेट नहीं करते, खोद के देख रहा है, उगा ही नहीं है तो दबा दो वापिस पानी डाल रहा, फर्टिलाइजर। फिर 2 दिन बाद फिर खोद के देख रहा। अपने 40 के रिटायर वाली पब्लिक कैसी होती है, बॉस इमीडिएट, वी वांट इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, वेट नहीं करते हम किसी के, फटाफट। फिर देख रहा है, फिर अब ये कौन नहीं उगने दे रहा? ये इंसान जो कर्म किया है और फल की वेट करनी पड़ेगी, पर वो फल की चिंता कर रहा है। गीता इज गोइंग टू द एक्सटेंट कि फल की इच्छा ही मत करो, वो हमारे लिए मुश्किल है, एटलीस्ट हम चिंता नहीं करने पर सेटल हो सकते हैं। गीता तो बोल रही है इच्छा ही मत करो, क्योंकि होना ही है जो होना है। और गीता के एक्चुअली पॉइंट क्या है बॉस, लॉन्ग टर्म देखेंगे ना तो ये जन्मों की स्टोरी है। मेरे को लगेगा मैंने इतना अच्छा काम किया लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिला, ये पीछे का कुछ हिसाब बाकी होगा भाई। देयर इज समथिंग ऑल संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, देयर इज समथिंग विच इज डिफरेंट। ये बहुत लंबी इक्वेशन है, उसमें नहीं पढ़ते, चलो अपने अर्बन सिटीजन है, पर हम चिंता तो करना बंद कर सकते हैं। वो तुम जैसा सोच रहे हो लाइफ इसी लीनियर नहीं चलती है, पीछे का बहुत हिसाब है, राइट? वैसे लीनियर नहीं चलती लाइफ जैसा मैं सोच रहा हूं, पीछे की बहुत इक्वेशन है। कौन से जन्म, अभी तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके देयर आर सम कॉन्सेप्ट्स, राइट? पीपल एक्चुअली मेक हिप्नोटाइज यू एंड टेक यू टू सम काइंड ऑफ पिछला जन्म एंड फ्रॉम देयर दो स्टोरीज कम। देयर आर बुक्स ऑन दैट बाय द वे, राइट? हमको तो अपना लिटरेचर हम मानना नहीं चाहते, बट देयर आर बुक्स ऑन दैट विच आर confirming the presence of past life. There are little kids who remember past life and they take them to some village 1000 kilometers away और बोलते हैं हाँ जो इसने बताया वो सही। अभी तो प्रूवन है ये सब, है ना? पिछला जन्म तो प्रूवन है, तो कहीं ये प्रारब्ध संचित वाला भी कॉन्सेप्ट प्रूवन है, पर हम नहीं मानते। कोई बात नहीं, हम बोल रहे हैं इच्छा नहीं करेंगे, इच्छा नहीं होगा वो नहीं होगा, चिंता नहीं करेंगे, चलो वहीं सेटल होते हैं एक बार, लेट्स स्टार्ट देयर। काम इतना शिद्दत से करें कि चिंता नहीं हो, क्योंकि वो आ ही जाने वाला है, टेंशन नहीं है। जस्ट लाइक इनकम टैक्स का रिफंड, मेरा एक दोस्त कब से पड़ा, आया नहीं, तेरा आया, अरे बाबा नहीं आया, आ जाएगा यार, विद इंटरेस्ट आएगा, वाई डू वरी। अरे यार 2 महीने हो गए मेरे को रिटर्न भर, यार आया नहीं, आएगा नहीं यार, रिफंड आएगा ना, रिफंड तो आएगा ना, सिमिलरली रिजल्ट विल कम। आज ही उसका मैसेज था, ये रिफंड नहीं आया यार। अरे एक तो मैं इनकम टैक्स वाले नहीं, ना मैं सीए हूँ भाई, यू गेटिंग बिहाइंड मी, उसको चेक करना है तेरा आ गया क्या। अरे आ जाएगा बाबा रिफंड यार, व्हाई डू वरी, यू नो। सो दैट अब ये आएगा ना रिफंड तो, सो दैट्स हाउ इट इज। यू हैव टू बी दैट श्योर अबाउट द रिजल्ट, बट देन यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड शायद ना भी आए, उसकी इक्वेशन के सेटल होने के लिए इच्छा नहीं करना पीस देता है, बट जैसा जो समझ में आए। बट द थिंग इज, काम में ऐसी शिद्दत हो, काम में इतना मजा आ जाए कि रिजल्ट ना आए तो ना आए, बट मजा बहुत आ रहा है। दैट इज माई रिवॉर्ड, द बेस्ट दैट आई गेव। विशेष कर्म, आत्मा की शांति वाला, आत्मा की शुद्धि वाला कर्म करके मुझे इतना मजा आ रहा है, दैट इज वॉट कर्म योग इज सेइंग, राइट? एंड देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्वधर्म, एंड देन विल quickly after this slide, one more slide, and we'll talk about Bhagavad Gita, this Bhakti Yoga also. स्वधर्म क्या है? नीम का स्वधर्म कड़वाहट है, शहद का स्वधर्म मिठास है,
तू क्षत्रिय है, तेरा सुधर्म क्षत्रिय है, बिकॉज तेरे को बचपन से ऐसा रेडी किया गया है। मेरा जो भी सुधर्म है वो सुधर्म है। अब मेरा वो सुधर्म है और मैं उसका ऑपोजिट, शहद अगर नीम बनने की कोशिश करेगी तो काम खराब ही होगा। जैसे हम बोलते हैं हाथी को पेड़ पर चढ़ाओगे तो थोड़ी एग्जाम ऐसा लेते हैं, सिमिलरली वैसा हो गया, राइट। मेरा जो सुधर्म है वो मेरा कोर कॉम्पिटेंसी, आज की लैंग्वेज में बोले कोर कॉम्पिटेंसी, वो कॉम्पिटेंसी जो मेरा कोर कॉम्पिटेंसी है मैं उसी को डेवलप कर रहा हूँ, उसी में करियर बनाऊँ। आई मेक अ करियर इन दैट ओनली। कोर कॉम्पिटेंसी क्या है मेरा, XYZ इज माई कोर कॉम्पिटेंसी, वर्क इन दैट एरिया, राइट। सो सुधर्म क्या है, वो मेरा सुधर्म है, मेरा कोर कॉम्पिटेंसी। एक तो हो गया मेरा इंडिविजुअल कोर कॉम्पिटेंसी। यहाँ पे सुधर्म की जो बात हो रही है, साथ के साथ इंसानियत की कोर कॉम्पिटेंसी क्या है, एक है सेवा भाव। सेवा भाव इज नॉट मंदिर में झाड़ू लगाना, दैट इज ऑल्सो देयर, बट ठीक है। सेवा भाव इज नॉट ऑल्सो गिविंग चैरिटी। सेवा भाव इज, सेवा के भाव से मैं काम कर रहा हूँ मेरे क्लाइंट के लिए, पैसा तो आएगा बाबा, सेवा डजंट मीन आप पैसा मत लो, पर भावना क्या है सेवा की। मेरे अंदर एक स्किल है, मेरे अंदर एक स्किल है जिससे मैं दूसरे का भला कर सकता हूँ, तो मैं दूसरे का भला करूँ, वो सेवा भाव से जब मैं काम करूँगा, इक्वेशन ही चेंज हो जाएगा यहाँ पे। दिस इज व्हाट भगवत गीता इज सेइंग। अब माने या ना माने वो अलग बात है, गीता ये बोल रही है आप सेवा भाव से काम करो, आप काम वही करो, पैसा भी वही लो, सब कुछ वही करो, लेकिन भावना जो है वो सेवा की कर दो। आई टेल पीपल इन माई कॉर्पोरेट लेक्चर्स, जब आप जॉब करने जा रहे हो, आप जॉब करने जाओ, आपके पास स्किल है, आप इंजीनियर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आर्किटेक्ट हो, कुछ भी हो, आप उसी, वो स्किल है ना, वो स्किल से आप कंपनी का भला कर सकते हो। ऐसा नहीं कर रहे हो, इक्वेशन ऐसा नहीं है मैं काम कर रहा हूँ पैसा दे रहा है हिसाब, ऐसा नहीं होता है, इट डजंट वर्क लाइक दैट। आपने काम अच्छे से किया सेवा भाव से कि कंपनी का मैंने कुछ भला किया, एहसान नहीं किया कंपनी पे, मैंने कंपनी का कुछ बेनिफिट किया बिकॉज ऑफ द स्किल दैट आई हैड, वहां पे इक्वेशन सही हो जाएगी, वहां इक्वेशन से। ये कर्मयोग है, ये कर्मयोग है, ये सेवा भाव है। देखिए बैलेंस शीट की लैंग्वेज में आप लोग को समझाता हूँ, सूरज को दिया दिखा रहा हूँ, बट आई विल टेल यू समथिंग। हम जब ऊपर जाते हैं ना, तो ऊपर जब तक पहुंच रहे हैं ना, उतने में भगवान चित्रगुप्त को बोलते हैं लाओ इसका प्रिंट आउट लाओ, हिसाब लाओ इसका। हम आते हैं तब तक बोलते हैं पहले ठीक है, पहले टेबल पे बैठ, बता क्या कर क्या है, तेरे को जो जो दिया था, तेरे को लगा तूने किया, पर दिया तो हम नहीं था, है ना। तेरे को जो ही लगा हो, चाहे वो डिग्री हो, चाहे पैसा हो, चाहे जो भी हो, ऊपर वाले ने दिया, ऐसा बोलते हैं ना। तो ऊपर वाला पूछ रहा भैया तेरे को इतना दिया था और स्किल्स दी थी, मेंटल स्किल्स दी थी, इंटेलेक्चुअल स्किल्स दी थी, सेवा भाव का कॉन्सेप्ट तो दिया था कम से कम, करके क्या आया बता। तो वहाँ पे एक कॉलम बनता है बैलेंस शीट का, एसेट लायबिलिटी नहीं होता है, नेट गिवर एज इन गिवर एंड टेकर। भैया तो दुनिया में ले ले ही कर रहा था, तो देखा सब छोड़ के आया, तो क्या ले ले इकट्ठा कर रहा, सब छोड़ के आया, तो क्या ले ले कर रहा था, दिया। देने में क्या, अगेन नॉट चैरिटी। किसी बुजुर्ग को हेल्प कर दी सामान उठा के, किसी के लिए लिफ्ट के लिए रुक गए, आज की डेट पे कितना बड़ा काम है। सामने लिफ्ट जा रही है, अपने बोलते रुक रुक, अपने पहुंचे वो चला जाता है, अपने बोलते यार 5 सेकंड में क्या था, रुक जाता थोड़ा सा, ट्रैफिक में रुक जाना, भाई तू निकल, जैम ना करवाना अपने आप में आज चैरिटी है। बट इन एडिशन टू दैट किसी नेत्रहीन को सड़क क्रॉस करा दी, किसी को हेल्प कर दिया, ऑफिस में जाते ही गुड मॉर्निंग, किसी को लगे यार तेरी गुड मॉर्निंग की वेट कर रहे थे, आज तू आया नहीं ना, आज मजा नहीं आ रहा, ऐसा कोई बोल दे मतलब अपने सही जा रहे। ऑफिस में हैप्पीनेस का एक कॉन्ट्रीब्यूशन, अपने घुसते ही सब खुश, अपने पास लोग आ रहे हैं क्या करूं यार, तो अपने काउंसलिंग कर रहे हैं लोगों की पर्सनल लेवल पे। किसी के दुख का निवारण कर पाना एक चैरिटी से बड़ी कोई चीज़ नहीं, इससे बड़ा कोई आप पैसे नहीं दे सकते किसी को। अगर आपने किसी के दुख का निवारण कर दिया था एट एनी लेवल, यू हैव डन योर जॉब, राइट। तो ये सेवा भाव है। मैस्लो क्या बोल रहा है, अगर आपने अपने आप को सेल्फ एक्चुअलाइज नहीं किया तो वो आपके दुख का बड़ा कारण बन के रहेगा पूरा जीवन। बिकॉज आपके अंदर था 10 मिनट और रुक जा काम खत्म हो जाएगा, नहीं हमारा तो 5 बजे हम जा रहे हैं, 5 बजे हम जा रहे, 6 बजे हम जा रहे हैं, बेटा 10 मिनट रुक जा काम खत्म हो जाएगा। अंदर से आवाज आ रही है खुद को, बॉस नहीं बोल रहा है, तो बॉस बोलेगा तो बॉस से टॉर्चर, पर 10 मिनट की बात है यार, ऐसा क्या है। अनलेस एंड अनटिल आपकी कोई ट्रेन मिस हो रही है, लोकल ट्रेन है या कुछ और है, वो अलग बात है। अदरवाइज बॉस आपको घर पे जाके एंटीलिया बनाना है क्या, खत्म कर देना 10 मिनट में काम। वो जो नहीं किया और वो जो किया, उसका डिफरेंस
इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट. मैस्लो बोल रहा है थोड़ा और एक्स्ट्रा करके अगर काम खत्म हो जाता तो अच्छा था, नहीं खत्म होगा तो तेरे को अंदर तो रहेगा यार ये खत्म कर देना चाहिए था, भले तू जिद में चला गया बिकॉज यू हैड द पावर टू से नो एट दैट टाइम, राइट, यूनियन बाजी एंड ऑल दैट. तू चला तो गया बेटा, लेकिन तेरे का मन में तो रहेगा एक्चुअली यार 10 मिनट की बात थी, ईगो के लिए मैं मना कर दूँ. अब उसमें साइकोलॉजी में जाएंगे, दिस अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड डिनायल, सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म्स बाय सिगमंड फ्रॉइड, और आप अपने आप को डिनाई कर रहे हो, वो सब अलग चीज़ है, जस्ट अ डिफरेंट टॉपिक एंड अ डिफरेंट डे. बट देन दिस इज देयर. मैस्लो बोल रहा है तेरे अंदर जो गिल्ट रहेगी वो तेरे को मारती रहेगी. नेक्स्ट इज काइजन. सॉरी क्या है? Yeah, I think we'll move on with this. What happened? Yeah, so Kaizen. Kaizen में जो कॉन्सेप्ट है, एक तो है सेवा भाव, दूसरा ग्रोथ माइंडसेट. मैंने ऑलरेडी बोला लिविंग एंड नॉन लिविंग. गीता बोल रही है बॉस ग्रो करना तुम्हारा एसेंस है, बीइंग अ लिविंग थिंग. इट इज योर एसेंस टू वांट टू ग्रो. And the second one is willing to excel. Excellence के पीछे भागो, राइट. ये आपके अंदर इनग्रेन्ड है. मैंने ऊपर से फैक्ट्री सेटिंग ऐप में डाला है, वो प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं करना है. इट इज देयर इनसाइड यू टू डू बेटर 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 बेटर. इट इज देयर इनसाइड यू. यू आर इक्विप्ड विद दैट. यू आर सपोज टू डू दैट. इट इज यू. डू इट. बिकॉज दैट इज बीइंग योर नेचुरल फ्लो. नदी के उल्टे बहोगे थक जाओगे, नदी के साथ जाओगे थकोगे नहीं. नदी के साथ बहे रहो, चलते रहो, बिकॉज दैट इज योर कोर एसेंस, दैट इज योर कोर कॉम्पिटेंसी, दैट इज योर स्वधर्म टू डू दिस. सो यू मस्ट डू इट इज द पॉइंट हियर, राइट. नाउ भक्ति भाव, क्विकली. भक्ति भाव, दो बात किया हमने, कर्म ज्ञान योग का बात किया, कर्म योग का बात किया. नाउ भक्ति भाव. भक्ति भाव क्या है? मंदिर गए, भगवान को बोला जो किया वो अच्छा, मेरे को हर चीज में हाँ है. मन का हुआ तो अच्छा, मन का ना हुआ तो और भी अच्छा. ये भक्ति भाव. भक्ति भाव ये नहीं है मैंने इतना सारा तेरे यहाँ मंदिर बनवाया या कुर्सी लगवाई या सब किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ. भक्ति भाव वो नहीं है. भक्ति भाव बोल रहे भाई कंप्लीट सरेंडर, अनकंडीशनल सरेंडर. दैट इज भक्ति भाव. दैट इज भक्ति भाव. अब ओ माय गॉड को थोड़ा सा लेके आते हैं, वो भी है ना, वो तिरुपति के बाल वाला एग्जाम्पल था. अब भगवान के साथ डील कैसा होना चाहिए, जो गीता बता रही है. भगवान के साथ डील ऐसा हो कि मंदिर गए, भगवान ये दे दे, भगवान वो दे दे, भगवान ऐसा ना हो मेरे साथ, भगवान कल मैं पास हो जाऊं, भगवान मेरी शादी अच्छी हो जाए, वगैरह वगैरह वगैरह, सो मेनी थिंग्स. अपने मंदिर में घुसे, भगवान ने देखा, बोले यार फिर आ गया ये, शू करूँ एनु यार, बहु मांग मांग करे છે, बहु रड़ा रड़े છે, शू करूँ एनु यार. माइंड बॉडी सोल का इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन बना के भेजा है इसको, ये क्या कर रहा है जिंदगी के साथ यार अपनी, और मेरे को ब्लेम कर रहा है ऊपर से. भगवान એવું કેમ કર્યું? अच्छा होता तो बोलता नहीं है, बुरा होता तो भगवान ऐसा क्यों किया मेरे साथ. શું કરવાનું यार આ માણસનું यार, कैसा पैदा किया, और इतने सारे हैं, क्वांटिटी में पैदा हो गए हैं सब, मिलियंस और बिलियंस ऑफ देम. पर अगर आप नेट गिवर हैं, अगर आप हेल्प कर रहे हैं, अगर आप सेवा भाव से काम कर रहे हैं, अगर आप किसी को स्माइल दे रहे हैं, अगर आपने किसी को सुबह सुबह किसी की हेल्प कर दी, सामान उठा दिए, जो जो मैंने एग्जांपल दिया ना, लिफ्ट के लिए रुक गए, इतना इतना. और चैरिटी की तो बात ही नहीं करी, वो तो है ही, वो तो अलग है, करी नहीं करी वो अलग चीज़ है. पर मैं सेवा भाव से जीवन जी रहा हूँ, सरेंडर से जीवन जी रहा हूँ. अब मैं जाऊँ मंदिर में तो भगवान फिर माथा पकड़ लेगा. अभी क्यों पकड़ेगा? एनो हिसाब बाकी है यार, एनो જાય છે, શું કરું એનું, मांगतो પણ નથી. ये मांगी ले यार, तू थोड़ू मांगी ले, भगवान सब दिया तुमने यार, क्या मांगना है यार अभी यार, क्या यार शर्मिंदा कर रहे हो यार. मैं तो चाय पे नहीं, चरणामृत पे चर्चा करने आया था. मैं ऐसे ही आया था, डूड चिल, कम ऑन डूड, आई जस्ट कम टू टॉक. ऐसे ही आया मैं. यार तुम मांगता ही कुछ नहीं है यार, क्यों नहीं मांगता है कुछ? भगवान तूने सब दिया यार, औकात से ज्यादा दिया, और देता रहेगा. अब भगवान वो हिसाब, उसको भी तो बैलेंस शीट में नीचे डबल ईटी लगानी है ना, हिसाब बराबर रखना है ना, तो वो झक मार के देगा, क्योंकि मैं दे कर रहा हूँ, मेरा लेने वाला कॉलम बाकी है भाई. आई थिंक इसमें भगवत गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है यार, ये बेसिक है. दिस इज बेसिक, कर्म की थ्योरी का बेसिक है. इसमें भक्ति भाव भी ऐड हो गया, क्योंकि मैं जा रहा हूँ कुछ मांग नहीं रहा, तो ये भक्ति भाव हो गया. कर्म योग क्या हो गया? मैं काम कर रहा हूँ सेवा भाव से,
फल की इच्छा नहीं है, फल आ जाएगा उसका टेंशन नहीं है, भगवान तू बैठा है मेरे को टेंशन नहीं है, तेरे को जो देना दे, नहीं देना ना दे, काम करके मजा आ गया बस। ऐसा मेरे को अक्ल देते रहना और अपॉर्चुनिटी देते रहना कि स्किल है, काम मिलता रहे बस। पैसे का मेरे को टेंशन नहीं है, वो तू दे देगा, अपना हिसाब है। जो तेरा पुराना जन्म या वो जन्म मेरे को पढ़ना नहीं है, उसमें बहुत डिफिकल्ट है, मेरी मेंटल औकात भी नहीं है कि मैं पिछले जन्मों का हिसाब लेके बैठूं तेरे साथ। तू देख लेना यार तेरे हिसाब से। ये भक्ति और कर्म हो गया। और ज्ञान क्या है? मैं शरीर नहीं हूं, तो मेरे को तो कोई तोड़ ही नहीं सकता। शरीर के साथ जो करना है कर लो, मेरे को हरा के दिखाओ। वो जो फियरलेसनेस है भगवान बोल रहे हैं उसके साथ जियो। बिकॉज वही स्वाधीनता जिसकी बात करी, बोल रहे हैं फ्रीडम इज द एसेंस ऑफ योर लाइफ। जो गीता बोल रही है, बार बार बोल रही है, फ्रीडम इज द एसेंस ऑफ योर लाइफ। यू हैव द राइट टू लिव फ्री, यू हैव द राइट टू नॉट लिव लाइक दैट गाय। आई थिंक वो आगे पीछे होगा, नॉट लिव लाइक दैट गाय। अब ये स्लाइड क्या है? ये ज्ञान ले लिया भैया बहुत, अब जरा आगे बढ़े, काम पे लगे। अब बहुत गीता सुन ली हमने भी और अर्जुन ने भी, जरा काम किया जाए। अब लास्ट में दो श्लोक 18.71 18.72 बात शुरू हुई 2.13 से, सेकंड अध्याय 13वां श्लोक। वो क्या बोल रहे हैं? बात हुई मोह से। तू क्यों मोहित हो रहा है ऐसी चीज लोगों के साथ? क्यों पंडितों जैसी बात कर रहा है? मोह वर्ड आया 2.13 में पहली बार गीता में। 18.72 में भगवान ने पूछा, भैया तेरा मोह खत्म हुआ कि नहीं? एक ही प्रश्न, भैया इतना सारा ज्ञान दिया तुमने, ये योग वो योग ये योग संचित कर्म एक्सेट्रा 18-17 अध्याय लगा दिए तुमने, इतना ज्ञान दिया। एज अ टीचर समराइज कर रहे हो तो कुछ तो पूछो यार, एक ही पूछ रहे हो मोह। बिकॉज मोह की जो 18.72 है उसका जो वर्ड्स हैं, तेरी मोह की वजह से जो बुद्धि भ्रष्ट हुई है, अब ठीक हुई कि नहीं? मोह की वजह से बुद्धि भ्रष्ट थी। गीता में ना एक एक श्लोक अपने आप में एक एक दिन का चैप्टर है, एक एक दिन का व्याख्यान है। मोह की वजह से तेरी जो बुद्धि भ्रष्ट हुई थी, मोह क्या है? शरीर से मोह। मैं ये शरीर हूं, जहां मैंने माना मैं ये शरीर हूं, मेरे डिजायर्स का लिस्ट आ गया और कोई फुलफिल होगा, कोई नहीं होगा। एंड वहां पे नेगेटिविटी आनी शुरू हो गई, दुख आना शुरू हो गया। और वही स्वाधीनता की बात कर 18.73 में भाई बोला ठीक है। 18.78 is the end button. 18.78 is the last closing remarks. End button कहाँ है इसमें? Not my laptop, so we'll go like this. 18.78 is workplace monk, कर्म योगी। कर्म योगी क्या है? As per 18.78, संजय क्लोजिंग रिमार्क्स दे रहा है धृतराष्ट्र को, द लास्ट श्लोक ऑफ भगवद गीता। जहां कृष्ण है, जहां अर्जुन है, वहां विजय है, वहां प्रॉस्पेरिटी है, वहां पे नीति है। ये तीन शब्द यूज हुए हैं। वहां नीति है, प्रॉस्पेरिटी है, विजय है। अपने क्या बोलते हैं? कृष्ण अर्जुन। अर्जुन तो ठीक है, जहां कृष्ण है वह है। नो, इट इज अ मेटामॉर्फिकल स्टेटमेंट। व्हाट इज बीइंग सेड हियर इज, जहां अर्जुन है यानी जहां स्किल है, ईच वन ऑफ यू स्किल, जहां स्किल है, जहां स्किल है वो अर्जुन, और जहां कृष्ण है क्लैरिटी ऑफ थॉट। क्लैरिटी ऑफ थॉट की बात हो रही है, भगवान कृष्ण की बात नहीं हो रही। कृष्ण इज जस्ट अ मेटाफॉर हियर। जहां अर्जुन है यानी यहां स्किल है, और जहां उस स्किल के साथ साथ क्लैरिटी ऑफ थॉट है, वहां विजय है, वहां प्रॉस्पेरिटी है, सस्टेनेबिलिटी। पैसा आया गया ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि अच्छे से कमाया है, ढंग से। सस्टेनेबिलिटी एंड नीति, मॉरल्स एंड एथिक्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये लास्ट श्लोक हुआ अपना 18.78। तो दैट्स वाई जो आपने इंट्रोडक्शन में बोला वर्कप्लेस मॉन्क, वो वर्कप्लेस मॉन्क, दैट इज व्हाट आई कॉल माई सेल्फ। एवरीवेयर यू विल सी दिस इन माई इंट्रोडक्शंस ऑल्सो, इन माई वेबसाइट, on my YouTube channel, on my LinkedIn, everywhere this is there, workplace monk. This is what I am, and this is what I am proud of. No ego, nothing, but this is what I am, and this is what I tell everybody. Every one of you have to become a कर्म योगी. अब योगी जो है as per भगवद गीता, योगी का डेफिनेशन एक ही सेकंड में, योगी का डेफिनेशन एज पर गीता जो सेकंड अध्याय में समझाया गया, श्लोक नंबर मेरे को याद नहीं है अभी, 2 point something, आई डोंट नो। योगी का डेफिनेशन ये है
जो निष्काम कर्म भाव से काम कर रहा है, जो तत्व से चीज़ों को जानता है, जिसके अंदर नीति है, जो समझता है चीज़ों को, अपने आप को शरीर नहीं मानता है, वो योगी है। दैट इज योगी एज पर भगवत गीता, वो योगी है। और वही कर्म योगी है जो रियलिटी में चीज़ों को समझता है और उसको आगे इम्प्लीमेंट करता है लाइफ में, अकॉर्डिंगली लाइफ जीता है, जिसको काम को लेके फल की इच्छा नहीं है। सो दैट इज फ्रॉम मी। आई एम रियली थैंकफुल टू यू. You were really patient in the way you were listening, and I hope it was useful to you. It was just that I tried to make it very practical and impactful. I hope I was successful in that. And once again, I'm really sorry for being late. God bless all of you. Jai Shri Krishna. Thank you.